Set 2019 DM section. First question. You are HR, managing in HR department of Vikas Educational Charitable Trust. You organize and support recruitment and training, provide secretarial support for disciplinary investigation, and keep personalized record for staff. You report to Ms. Dilipa and one of the two senior HR managers who reports to HR director. ठीक है. For the post of consultant professor in the trust, two internal candidates, Rana and Charan, were interviewed. Mr. Charan was selected as he was considered to be academically gifted with impressive leadership skills, even though he had less experience than the other. 3 days later, Mr. Rana came to office complaining about the selection process was unfair and he had more experience than Charan. क्या करोगे? वो बोलते हुए आया कि भाई ये फेयर नहीं था सिलेक्शन, मेरे पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, उसके बावजूद आपने दूसरे को सिलेक्ट कर लिया. ये डाउट है क्या? यस No, सर। sir. No, sir. Ms. Dilipa had asked you to conduct a non-teaching staff सर selection उसका वो induction training. पॉइंट पूछना था। क्या? मतलब वो मैंने दूसरा मार्क किया था, वो पूछना था। ये Tell क्यों Mr. गलत Rana किया? the institute finds the right person for the job, not the one who has been around the longest. ये थोड़ा रूड हो जाएगा केवल, ये दिक्कत है. ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है वैसे, पर ये रूड हो जाएगा कि भाई मैंने सही किया है, कोई गलती नहीं. एक तो प्यार से समझाना होता है, एक थोड़ा रूड वे में होता है, ये रूड वे हो रहा है. ठीक है बेटा. हाँ। Ms. Dilipa had asked you to conduct a non-teaching staff induction training. You have to call for a tender from various agencies with specification that include the content, duration, experience, budget, and other relevant information. You then need to shortlist 5 agencies from the list of 20 and make presentation within 2 days. कुछ responses हैं. First, rate all 20 agencies on a scale of 1 to 5 on the information available and select the top 5. Select the 5 lowest bids based on the price quoted. Seek selection criteria from Dilipa and HR director and shortlist the bidders accordingly. Follow the advice of person who has completed a similar task. क्या करना चाहिए? जल्दी बोलो. केवल फर्स्ट पॉइंट बता दो क्या होना चाहिए. Three. 3. हाँ, 3. अपन ने अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि अपने सीनियर से एडवाइस लेने में कोई बुराई नहीं होती, इनफैक्ट लेनी चाहिए, राइट? तो इट शुड स्टार्ट विद 3. अब 3 पे यदि आते हैं तो वी हैव टू ऑप्शन 3 to 4 एंड 3 1 2. तो देखो 2 तो दोनों में आ रहा है, उस पर दिमाग मत लगाओ. फोकस ऑन 1 और 4. 1 को लेना चाहिए या 4 को लेना चाहिए? 4 सर, एक्चुअली 4 एलिमिनेट हो रहा है। 4 तो थर्ड की वजह से एलिमिनेट हो गया, तो और बस 1 फिर वैसे अपना भी ऑप्शन लेना आ गया चाहिए. 3 1 2। 1 वैसे भी लेना चाहिए, उनको रेटिंग के बेसिस पे आपको करना चाहिए. तो करेक्ट आंसर शुड बी 3 दिस वन 1 2। ओनली, 3 1 2. क्लियर है? हाँ Sir, कोई सर। डाउट? हाँ जी बेटा. सर एक बार फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने एक्चुअली मेरा खुल नहीं रहा था पोर्टल, एक बार फर्स्ट क्वेश्चन कर लें क्या डिस्कस अपन? बोलो. इसमें मैंने है ना 4th पॉइंट मार्क किया है। 4th. 4th जैसा कि मैंने बोला था कि रूड हो जाएगा. आप गलत नहीं बोल रहे हो, पर आपको इस तरह से एक तो मैं समझाऊं कि नहीं देखो ज्योति ऐसा नहीं है, मैंने हमने प्रोसेस फॉलो किया है ना, और उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन हुआ है. हम्म। और एक मैं ऐसा बोल दूं कि हम उनको ले रहे हैं जो सही होगा, वो नहीं जो ज्यादा लंबे हमारे साथ काम कर रहे हैं. तो रूड भी हो जाएगा सर बोलने बट में. उससे उसको अपन पर्सनली. डिटेल्स अरे अपन इंटरनल डिटेल्स वो थोड़ी ना है, शेयर कर सकते हैं। कर सकते हैं, कोई अच्छा, दिक्कत वाली बात नहीं, ओके। इंटरनल है. इंटरनली इसलिए कर सकते हैं ना, वैसे तो अपन नहीं कर नहीं सकते वैसे नहीं कर सकते. असेसमेंट का। Vikas Trust has been the Vikas Trust has recently been plagued by high turnover of teaching assistant with many looking for higher salaries and better facilities. You have been asked to design a run a campaign to attract and appoint 10 teaching assistant. One of your measure of success will be the retention of new recruits. Retention मतलब कि वो ऐसा नहीं कि जॉब आज कर रहे हैं कल कहीं दूसरी जगह चल जाए, कंपनी में टिके रहे. रिटेन करना बहुत जरूरी होता है. यू हैव 4 weeks फॉर द इंटरव्यू. क्या करेंगे? रिव्यू द फॉलोइंग. इसमें डाउट है बच्चों? सर मैंने, हाँ इसमें है, मैंने ना इसमें थर्ड ऑप्शन किया था 4 3 1। चलो इसमें से अपन देखते हैं कि क्या सबसे पहले होना चाहिए. शॉर्टलिस्ट एप कैंडिडेट हु रिफ्लेक्ट वैल्यूज ऑफ द ट्रस्ट अमंग द रिस्पोंडीज टू अ वाइड एडवर्टाइजमेंट कैंपेन. डिजाइन एन ad that attract candidate with the values that matches the trust. Release it at an appropriate time and revalidate the candidate's credentials at the time of shortlisting.
Repeat the process that was followed by the trust last time and seek expert advice on drafting an attractive advertisement. आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा लग रहा है वो बता दो, 1 2 3 4 में से 4। 4 लग सो रहा है। इसमें तो एक्सपर्ट एडवाइस नहीं ले सकते ना, एडवर्टाइजमेंट के लिए भी जाके अपन एक्सपर्ट की एडवाइस लेंगे, हाँ, क्यों नहीं? मतलब अपन तो एडवर्टीजमेंट देखो बेटा, में अगर बेटा मेरी हम बात किसी सुनो, को, मेरी बात सुनो। यहाँ पे अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट का क्या मतलब हुआ? जो लोगों को अट्रैक्ट करे। हाँ, और यहाँ से पहले ही लोगों की भीड़ हो रखी है, हैव बीन प्लेग्ड बाय हाई टर्नओवर ऑफ टीचिंग असिस्टेंट। तो तुमको अट्रैक्ट नहीं करना है, तुमको राइट सेलेक्ट करना है। फोर्थ इसलिए एलिमिनेट हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, आप यदि अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट देंगे तो ये तो नंबर और बढ़ जाएगा, आपको बढ़ाना नहीं है ये नंबर। नेक्स्ट, ठीक है, क्लियर है ये ओके वाला? सर। यस सर। The new education induction training program has been a roaring success. All new induction courses for the next 12 months have been tightly scheduled. This morning, you receive a call from Mr. Surya, the head of the trust, requesting you to train 8 newly recruited teaching assistants before they start their job next month. He explained that all the slots are fully booked for the next 3 months, but he insists that the new teaching assistants be trained immediately to hopefully reduce turnover among them. You speak to Dilipa, who wants you to deal with the issue on your own. आप गए अपने सीनियर के पास, उन्होंने बोला यार तुम अपने हिसाब से देखो, मैं कुछ नहीं कर सकती। क्या करना चाहिए? रिव्यू द फॉलोइंग रिस्पॉन्सेज दैट यू विश टू कम्युनिकेट टू मिस्टर सूर्या। क्या कहना चाहेंगे आप मिस्टर सूर्या को? आपके पास स्लॉट अवेलेबल नहीं है, वो चाह रहे हैं कि आप ट्रेन करो। Inform him that once the schedules are drawn up, it is not possible to effect any changes as the reputation of the trust would be at stake. Suggest that the new agency may be permitted to run induction session for teaching assistant as a special case. Tell him that if some inductees drop out in the first month, at least some teaching assistants can be accommodated. Or tell him that since no space is available in the induction training session for 3 months, you as the HR manager would conduct induction sessions for them after office hours. क्या करना चाहिए? फोर्थ सबसे स्ट्रांग है कि ऑफिस के बाद में पढ़ा दो। थर्ड स्ट्रॉन्ग है सर। सर सेकंड स्ट्रॉन्ग है, और फर्स्ट तो बहुत ज्यादा वीक है, तो फर्स्ट तो लास्ट में आएगा। सर थर्ड नहीं लग रहा है क्या स्ट्रॉन्ग? देखो, मतलब थर्ड से दो ऑप्शंस एलिमिनेट होंगे, दो, मतलब अगर थर्ड और सेकंड का ही डाउट है। देखो फोर्थ वाला हो सकता था, पर ये बहुत एक्सटेंडेड वो चीजें हो जाएंगी। और वर्किंग आवर्स तो एक्सटेंड किए जा रहे हैं ना, वो उससे बेटर कोई ऑप्शन अपन को ढूंढना चाहिए। फोर्थ में गलत नहीं बोल रहा हूँ, समझ लेना, पर ये इतना जल्दी नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई हम और एक्स्ट्रा रुक जाएंगे काम करने के लिए। तो मेरे हिसाब से सेकंड अच्छा है। उनको सजेस्ट करो कि एक दूसरी एजेंसी हायर करें, जस्ट बिकॉज आपके स्लॉट्स अवेलेबल ही नहीं। थर्ड क्यों नहीं? थर्ड क्यों नहीं? थर्ड तो इलॉजिकल है। वो बोलेंगे यदि ड्रॉप आउट हो जाएगा तो हम कुछ को ट्रेन कर देंगे। पहली बात तो कुछ अच्छा, को ट्रेन कर देंगे, एंड दैट टू व्हेन सम ऑफ द ड्रॉप आउट इंडक्टीज हो ड्रॉप जाएगा, आउट, ये हाँ। तो गलत हो गया। ओके। तो आई थिंक हाँ सर। सेकेंड सबसे अच्छा है। उनको पहले ये बोलें कि आप दूसरी एजेंसी से करवा लें। यदि नहीं करवा पा रहे हैं तो 4 होना चाहिए। 1 रूड हो रहा है। 1 तो आप बोल रहे हो कि नहीं। कंफ्यूजन है फर्स्ट। नहीं हो। सर, हाँ बोलो। मेरे को ना कंफ्यूजन है फर्स्ट और फोर्थ में। अगर हमें कोई सीनियर बोलता है कि ऐसे ऐसे है और हमें अकोमोडेट करना है, तो ये तो कोई चांस ही नहीं है ना कि हम उसको डायरेक्ट मना कर देंगे कि हम अकोमोडेट नहीं कर सकते इसीलिए क्योंकि 1 हमारे सबसे सारे लीस्ट स्लॉट प्रायोरिटी बुक पे है। होना चाहिए। दैट इज द रीजन 1 शुड बी केप्ट एट लीस्ट प्रायोरिटी। अच्छा, आप कभी ओके। डायरेक्टली मना नहीं कर सकते हो। आप सजेशन दे सकते हो, हाँ। आप ये सब कर सकते हो, मना डायरेक्ट नहीं कर सकते। The हम्म। public relations department of an organization has spent only 4 crores of its allocated 16 crores on publicity. 16 करोड़ का फंड अवेलेबल था, उसमें से केवल 4 करोड़ का खर्चा किया गया है। There are 2 months left in the financial year. Due to shortage of officers, the assistant director operation has given an additional charge of publicity. Because of his other commitment, he is unable to find time to undertake tasks
such as baseline study, ascertaining communication needs, testing proposed messages and media channels, deciding optimum periodicity, measuring impact, etc. He also argues spending the rest of the budget is unnecessary because their regular programs are already widely known. His boss, the director, however, feels that only by utilizing the entire budget can a similar amount be demanded the next year. भाई आपको 16 करोड़ के रुपए मिले गए थे, फंड्स एलोकेट हुआ था, आपने 4 करोड़ ही खर्च किए। अब यदि आप और ये आपको पब्लिसिटी के लिए दिया गया था, एडवर्टीजमेंट के लिए दिया गया। अब यदि आप इसको पूरा खर्च नहीं कर पाते तो आप सही बात है, आप अगले साल कैसे 16 करोड़ रुपए मांग लेंगे? आपको बोला जाएगा कि भाई पिछले साल दिए थे उनका क्या हुआ, उसमें तो आपने 4 करोड़ ही खर्च कर पाए। इस बार कई दिक्कतों की वजह से हो सकता है पब्लिसिटी ना हो पाई हो, पर अगली बार तो नीड रहेगी ना, तो फंड्स तो आपको चाहिए होंगे। He also thinks that there is nothing like enough publicity, मतलब पब्लिसिटी तो जितनी करो उतनी ही कम है। Which of these is best course of action? क्या करना चाहिए बच्चों, आप खुद ही बताओ ना। सर मैंने सेकंड किया था। Second, rely on operational experience of director and assistant director and start spending the optimal amount right away. अरे कहाँ right away, कहाँ करना है पहले वो तो आइडेंटिफाई करो। हाँ और किसी का कोई डाउट है तो बोलो। मेरा लास्ट पॉइंट था, क्योंकि मतलब अगर आपका फंड यहाँ काम नहीं आया तो उसको और कहीं काम में ले लो। तो अगले साल मिलेगा नहीं ना फिर इतना फंड। नहीं, अपन बता देंगे कि हमने सही जगह काम किया तो क्यों नहीं सही जगह मिलेगा। काम किया तो वो सही जगह को देंगे ना। तुमने क्यों लिया था फंड? मार्केटिंग के लिए, और तुमने दे दिया एडवर्टीजमेंट के किसी लिए। और डिपार्टमेंट को, हाँ। तो इसका मतलब मार्केटिंग में इतने की नीड ही नहीं है, तो तुम ले क्यों रहे हो? हम्म नेक्स्ट, कोई हम्म। डाउट और? सर एक बार लास्ट और वाला ये फिर से बताओ ना, आपने क्या बोला? बेटा दूसरे डिपार्टमेंट को नहीं दे सकते क्योंकि आपने मार्केटिंग के लिए 16 करोड़ मांगे थे, उन्होंने दे दिए। हम्म। अब आपके हम्म। खर्च 4 करोड़ ही हुए, तो अगली साल भी आपको मार्केटिंग तो करवानी होगी ना। तो यदि फंड्स हाँ। ही नहीं मिलेंगे अगली साल आपको, तो कैसे कराओगे? इस बार नहीं करवा पाया पूरे 16 करोड़ खर्च, अगली बार तो करवाना ही है। ओके, और सर फोर्थ किस बेसिस पे कर रहे हैं? सर फोर्थ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पैसा खर्च तो करना है, पर आंख बंद करके नहीं करना। पहले आप पता तो करो कहाँ करना है खर्च। हाँ, ओके। मतलब सर अगर एजेंसी होगी तो अपने आगे लॉन्ग रन के लिए भी ये सही रहेगा, रिकमेंडेशंस उनकी, तो पैसा सही जगह लगेगा। Right. Which of these new developments, if true, would most justify a larger utilization of advertising budget? बताओ, इसमें से किस इवेंट में सर प्रॉपर मैंने इसमें यूटिलाइजेशन ई हो किया पाएगा? था, ई ऑप्शन। ई ऑप्शन। हम्म A new assistant director has been posted to exclusively look after publicity. बेटा केवल पब्लिसिटी के लिए एक असिस्टेंट डायरेक्टर रख लेना ये गलत है। पर उनका मेन कंसर्न तो पब्लिसिटी था ना। पब्लिसिटी था तो जो आपकी पहले की टीम है वो करेगी ना। किसी और को हायर करना केवल पब्लिसिटी के लिए ये नहीं होता ना। अच्छा। देखो ये बहुत अच्छा सर पॉइंट है थर्ड वाला। यदि कोई नई स्कीम आई है ना, तो उसकी पब्लिसिटी के लिए पैसा चाहिए होगा। इन्होंने एक पॉइंट दिया था, आपने यदि ध्यान से रखा ध्यान से पढ़ा हो तो। He also argues spending the rest of the budget is unnecessary because the regular programs are already widely known. ये रेगुलर प्रोग्राम तो वैसे ही बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो यदि कोई नई स्कीम आई है ना तो उसको पब्लिसिटी की नीड होगी। वहां पे बहुत पैसा अपन खर्च कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। खर्च करना क्या, यूटिलाइज कर सकते और सर ये तो बहुत बेकार सा पॉइंट है ना, मतलब बिल्कुल गलत है ना। हैं। हाँ इसका तो कोई डायरेक्ट लिंक ही नहीं है। है ना। ओके। Sanchit Group of hospitals seek to improve the success rate and patient satisfaction rate by 100% in the next year. However, the management can't afford to send doctors for professional development outside the country, nor afford purchasing more equipment. As an in-house measure, the managing board thought of having doctors with high patient satisfaction to mentor those with less. Most of the doctors found it an interference by the management, judgmental, and expression of distrust. There were, however, some isolated few who found it a novel way of learning from each other. The doctors felt that the management should instead increase consultancy fee and spend more on recruiting more paramedics who could spend time with patients rather than blame doctors, and decided to call it quit.
For the management, this would mean loss of patient. क्या करना चाहिए? For consider the following actions. The question is which of the following sequence of action is most appropriate for the hospital administration in achieving their goal? Conduct a survey of all stakeholders and ascertain their needs and suggestions. Build consensus among doctors and paramedics on a possible way forward. Prepare an action plan that details the roadmap along with financial implications. Design differential service packages based on affordability of the patient. Run a brainstorming session among the leading doctors of the area. क्या करना चाहिए? तो फोर्थ और फिफ्थ तो डेफिनेटली नहीं है, बस 1 2 3 का सीक्वेंस देखना है। अफोर्डेबिलिटी यस ऑफ द सर। पेशेंट्स के 3 बेसिस। अच्छा लग रहा है स्टार्ट करने के लिए। बट सर देखो इसमें फोर तो एक्चुअली डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, तो पहले फोर्थ वाला ऑप्शन एलिमिनेट करें तो फर्स्ट और गया, 5 थर्ड गया, भी। फोर्थ हाँ गया। नाउ वी आर कंफ्यूज बिटवीन सेकंड ऑप्शन एंड फिफ्थ ऑप्शन। उसमें से 1 3 कॉमन है तो कॉमन रहने दो। डिसाइड अमंग 5 एंड 2। 5 और 2 में से कौन सा लेना चाहिए? 2। सर 2। आंसर। बहुत इजी तरीका है क्वेश्चन सॉल्व करने का, हाँ वही बहुत जल्दी आंसर निकल सारे जाता है, पॉइंट्स। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर है? यस यस सर। सर। Which of the following decision is most likely to satisfy all the stakeholders? सर ये गलत हो गया। आप लोग को क्या सर डाउट है वो इसमें बताओ, मैंने क्या थर्ड होगा? ऑप्शन किया फोर्थ। था। क्या? फोर्थ ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। थर्ड और फोर्थ मतलब इन दो थर्ड में और डाउट है। फोर्थ। इंक्रीज द इनकम ऑफ डॉक्टर्स एंड द नंबर ऑफ पैरामेडिक्स। खर्चा कौन देगा? हाँ मतलब वही इसलिए थर्ड। डायरेक्ट गलत है। फोर्थ, रेज इनकम ऑफ डॉक्टर्स एंड क्यों? रिड्यूस वेटिंग टाइम ऑफ पेशेंट। खर्चा कौन देगा? सर रिड्यूस द वेटिंग टाइम ऑफ पेशेंट्स। अरे वेटिंग टाइम ऑफ पेशेंट कैसे खर्चा होगा? वो होगा। तो आप सर डॉक्टर्स की फर्स्ट इनकम में को भी तो कैसे इंक्रीज रेज द कर रहे हो? इनकम हो रहा है। क्या? सर फर्स्ट में भी तो इंक्रीज द इनकम ऑफ डॉक्टर्स एंड पैरामेडिक्स हो रहा है, फिर तो वो भी नहीं हो सकता। ऑल द स्टेक होल्डर्स। आप यहाँ पे केवल डॉक्टर्स की कर रहे हो, यहाँ पे सबकी कर रहे हो, नहीं पैरामेडिक्स की भी कर रहे हो। ये नहीं, मैं डिस्ट्रेस वाली पेशेंट्स की फीलिंग कर क्यों रही आ हूँ रही ना। थी? पैरामेडिक्स क्यों उनसे सीखना नहीं चाह रहे थे? तो सर उसमें भी कहाँ पता लग रहा है कि खर्चा कौन देगा? क्या? अरे सर और दूसरी चीज इसमें भी तो वेटिंग टाइम पेशेंट्स का अपन इसमें भी ओवरऑल देख रहे हैं स्टेक होल्डर्स। वेटिंग टाइम ऑफ आपको पता है पेशेंट्स वाली पैरामेडिक चीज कौन होता है? जो मेडिकल फील्ड में होता है ऐसा। नहीं। कंपाउंडर टाइप, मतलब हेल्प करने वाले। हाँ, वो होते हैं। अब आप केवल उनकी बढ़ा रहे हो सैलरी, है ना? तो वो पैरामेडिक्स की क्यों नहीं? अच्छा, यहाँ पे हो क्या रहा था कि पेशेंट का अच्छे से ध्यान रखा जाए। हम्म। ये इनका सर मेन आपकी होता है, पेशेंट का आवाज अच्छे से कट हो ध्यान रही रखा है। जाए। नहीं क्या? आवाज कट नहीं हो रही। आपकी आवाज कट नहीं हो रही, मैं ऐसा आदित्य को कह रही थी। ठीक है। तो अच्छा। यहाँ पे अभी क्या है, केवल डॉक्टर्स की इनकम बढ़ा देंगे तो दिक्कत नहीं होगी पैरामेडिक्स को, और नंबर ऑफ पैरामेडिक्स बढ़ा रहे हो और डॉक्टर की इनकम बढ़ा रहे हो। सो वेटिंग टाइम वाला पूछ रही हूँ मैं, फोर्थ। बेटा फिर उसमें पैरामेडिक्स रह गए ना। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो दोनों के साथ सही बिहेव करो, मतलब दोनों भाई को बराबर इनका बढ़ाओ। जो वो था ना, इनका कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा था अच्छे से। इन्होंने क्या बोला था? हम्म, हम्म, डॉक्टर्स को ही तो बोला था कि पैरामेडिक्स को समझाओ, उनकी मतलब उनको जिससे वो भी अच्छे से मैनेज कर पाए, है ना? एज एन इन-हाउस मेजर द मैनेजिंग बोर्ड डॉक्टर्स विद हाई पेशेंट टू मेंटर दोज विद लेस, मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स फाउंड इट एन इंटरफेरेंस बाय द मैनेजमेंट। तो पैरामेडिक्स लाने से क्या होगा? आप समझो, पैरामेडिक्स से क्या होगा? जो पेशेंट की केयर है ना, वो बहुत अच्छे से हो पाएगी। हम्म। हम्म। पेशेंट खुश होगा। यदि पैरामेडिक्स को कम सैलरी पे दोगे तो उनको दिक्कत रहेगी। हम्म, हम्म। डॉक्टर्स अपनी जगह है ही है। सही बात। तो फर्स्ट में हाँ। सारा हो रहा है, ऑल द स्टेक हाँ सर होल्डर। वेटिंग टाइम का कुछ सीन ही नहीं है, मैंने दोबारा और पैराग्राफ वेटिंग रीड टाइम किया। का ऐसा कहीं पेशेंट्स दे का नहीं कोई रखा वो है। ही नहीं था। हाँ हाँ, नहीं है नहीं है। क्लियर है ये? हम्म यस सर। अच्छा, यहाँ पर केवल यहाँ पे इंक्रीज करने की बात होती है ना डॉक्टर्स की, हाँ। हम्म। तो ये गलत हो जाता क्योंकि रोल दोनों का है। हम्म। समझ गए? अच्छा मतलब केवल इन डॉक्टर्स की इनकम इंक्रीज हो रही होती
तो भी हाँ ये गलत हो जाता है ऐसा। हाँ। हम्म। Given the current situation, which of the following is the most interactive and effective way to increase the learning among paramedics and doctors? अब आपस में इसकी लर्निंग अच्छी रहे, जो था ना अपन बोल रहे थे कि वो सीखने में इंटरेस्टेड रहे, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो डाउट नहीं है। इस तरफ इशारा कर रहा है? ये डाउट है? ये डाउट नहीं है। नहीं है नहीं। ये तो इजी सा था, राइट? नेक्स्ट पे चलते हैं। सर, सेम सेट। अब देखो, जो मैं ये बोलता वाला। था कि डीएम में हाँ, रिपीटिशन होता है क्वेश्चंस ये का, तो आपने करा दिया। हाँ तो ये जो बैडमिंटन वाला था, रैकेट हाँ हाँ, एसोसिएशन वाला था, ये अपन कर वो चुके जो हैं। एज ड्रग इट इज टेस्ट सेट वाला रिपीट, था। हाँ, एज इट इज सेट रिपीट था। आगे एक और सेट रिपीटेड है। एंड दिस वाज बैक इन ईयर आई थिंक 2011, राइट? वहां का ही हाँ, रिपीट। मतलब अपने स्टार्टिंग में जो डिस्कशंस लिया था उसमें ही है। बिल्कुल। Mrs. Bhalla is the principal of Happy Public School. While it is a private school, the trust is socially sensitive and as a part of their spread happiness policy, provides quality education to many needy students from low-income neighborhood for free. She received a strange complaint from some of the affluent parents regarding their discomfort with allowing poor children to study along with their kids. They were concerned more about their manners, habits, and language than about schooling. They wanted the trust to either start a separate shift for such children or remove them from the school since they are supporting them. On the other hand, the parent of poor children complained of bullying and teasing and shared their concern regarding the mental trauma their children undergo. While Mrs. Bhalla by no means want to yield to the demands of affluent parents, she also cannot ignore since some of them have been making substantial donation to the school. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्या करना चाहिए? ये Which तो are the गलत हो following गया most पूरा। likely to get the सर affluent मैंने parents? भाई अपन को एफिलिएंट पेरेंट्स को समझाना है, तो इनमें से क्या होना चाहिए? फर्स्ट। तो मैंने मैंने देखो, सेकंड भी ऑप्शन सजेशन किया ऑफ दिया है। था। एफिलिएंट पेरेंट्स टू स्टार्ट सेपरेट शिफ्ट फॉर पुअर स्टूडेंट। क्या आपको नहीं लगता ये डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, पुअर को हाँ, अलग से? डिस्क्रिमिनेशन। बट सर, बेटर ऑप्शन नहीं है मतलब सब में से। नहीं। ऐसा आपको लगा बेटा? और कोई? सर बी। सेकंड। इनवाइट प्रोफेशनल टू कंडक्ट वर्कशॉप फॉर पुअर चिल्ड्रन so that they can learn basic manners, habits and language. नहीं, ये तो गलत है सर। क्यों? सर, वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे उनको, ये तो और ज्यादा बुरा नहीं लगेगा उनको? क्यों? पर अगर उनमें कोई चीज की कमी है और उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो वो तो डेवलप ही कर रहे हैं ना। तो तो सिर्फ पुअरर की अपन कर रहे हैं चीज, रिचर सेक्शन वैसे का वैसा बुली करे। अपन देखो सिर्फ पुअरर पे फोकस नहीं कर देखो, वो। जो इसका आंसर है, शेयर द फैक्ट दैट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट school ranking places 25% weight to policies similar to the school. इसमें कोई कुछ नहीं कर पाए, गवर्नमेंट का रूल है भाई, हम तो गवर्नमेंट का रूल फॉलो कर रहे हैं। समझ हम्म। गए? बात यही खत्म हो गई, कोई टेंशन ही नहीं थी। पर सर ये अगर इसके बाद अगर आपको रेट करना होता सपोज इसको छोड़ के, तो फिर तो बी होता ना वैसे। इसको छोड़ के करना हाँ। होता तो देख लेता हूँ। फर्स्ट हटा दिया था अपन ने, सेकंड अपन देख रहे हैं। मीट टू पेरेंट्स ग्रुप सेपरेटली, अंडरस्टैंड देयर की कंसर्न, सीक सॉल्यूशन फ्रॉम बोथ। एंड सीक सॉल्यूशंस फ्रॉम बोथ नहीं हो सकता था, इसलिए थर्ड गलत हो जाता। इनवाइट द फाउंडर ऑफ द स्कूल टू क्लैरिफाई गलत हो जाता, फिर सेकंड ही होता। सर, सर ये बट आपने क्या सेकंड में बोला? आप सीक सॉल्यूशन फ्रॉम बोथ गलत एकदम से क्यों? आप दोनों से सॉल्यूशन लोगे, दोनों अलग अलग बातें कहेंगे, आप किस तरह से सॉल्यूशन निकालो? ओके, राइट राइट, हाँ तो फिर बी होता। डन। बट सर सेकंड में ये आप जो पुअरर सेक्शन को डिमोट, मतलब आप तो रिचर सेक्शन का कुछ कर ही नहीं रहे, वो लोग तो बुली अभी भी करेंगे इनको। कंप्लेन दोनों तरफ से है, वो आप इन हाउस कुछ भी कर सकते हो। आपको इन हाउस आप। यहाँ पे क्या बोला है, पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। टू गेट द अच्छा। एफ्लुएंट पेरेंट्स टू एक्सेप्ट स्कूल्स पॉलिसी। हम्म। While Mrs. Balla understands the problem of overcrowded classroom and classroom management, she foresees in them an opportunity to develop more sensitive and self-motivated learners. Competition वाली फील देना चाहते हैं। Miss Balla is considering the following actions. Take the student
and the teacher council on board and seek their ideas to redress the challenges that the school faces. Brainstorm with the teachers and students on a strategy to engage all learners in team for meaningful learning and healthy relationships. Encourage students for self-learning and teachers into more supervisory roles, ensure discipline. Engage students in process of periodic reflection so that they can get in touch with their thoughts, feelings, action towards self and others, and create achievement-based student growth to encourage cooperation and ease classroom management. आप ऑप्शन मत देखो, आप वैसे ही डिसाइड करो कि कौन से हटने चाहिए पॉइंट या कौन से लेने चाहिए. सर आई गेस 3 तो लेना ही चाहिए. 3 नहीं लेना चाहिए. क्यों? सर हमें सेल्फ लर्निंग को ही तो प्रमोट करना है और उनके नहीं, मोटिवेशन लेवल को. सेल्फ लर्निंग को तो प्रमोट करना है, बट टीचर को सुपरवाइजरी रोल में थोड़ी आप दे सकते हो सुपरवाइजरी रोल नहीं देना. हाँ. क्या सर? सॉरी, सुना ही मैंने दिया. हम्म, बेटा. What has directly I forgot about that part. जी मैं बोलूं. हाँ, तो देखो अपना दिक्कत क्या है कि वो कह रहे हैं कि ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स भी अच्छे हैं क्योंकि वहां पे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. देखो ये क्या है, सेल्फ मोटिवेटेड लर्नर्स कहना चाह रहे हैं, और यहाँ पर जो थर्ड पॉइंट बोल रहा है encourage students for self learning. मतलब ओके. टीचर को तो सुपरवाइजरी रोल में डाल रहे हो आप और उनको सेल्फ लर्निंग पे फोकस करने को बोलो, ये गलत नहीं हो जाएगा? अच्छा, सेल्फ लर्निंग नहीं होना चाहिए ना. ठीक है ठीक है. 3 नहीं होएगा. समझ गए? तो 3 यस सर. एलिमिनेट होगा, और 3 एलिमिनेट होगा तो कौन कौन से ऑप्शन एलिमिनेट हो गए? 1 2 4. 4th. We are left with 1 to 5 and 1 to 5 4. 1 to 5 और 1 to 4, मतलब 4 और 5 में से डिसाइड करना है आपको कौन सा लेना तो चाहिए, मेरा भी 215 था इसमें जो वरुण ने मार्क किया है. है ना? तो 5 और 4 में से डिसाइड करना है. 4 कह रहा है फाइव बेटा 5 तो मतलब अलग गड़बड़ नहीं हो जाएगी? क्रिएट अचीवमेंट कैसे? बेस्ड स्टूडेंट ग्रुप्स. अच्छा, बायसनेस ऐसा. हाँ, ओके. सर बट वो एनकरेज भी तो कर रहे हैं कंपटीशन बट को. बायसनेस भी हो रही है, डिमोटिवेशन भी होगा फिर. मोटिवेशन भी होगा भाई. आज अपन ठीक है, ग्रुप्स बना दे जो कम अलग ढंग अलग से ग्रुप करते बना हैं वो दो भी कि ये ज्यादा पढ़ने करते हैं. वाले बच्चे हैं, ये अच्छे बच्चे सर हैं, अगर ऐसे. ऐसे कर दे तो समझ नहीं आएगा ना. एग्जैक्ट. हटा दूं? और सर हो गया. ये पीरियोडिक रिफ्लेक्शन का पॉइंट कैसे सही हुआ? एंगेज स्टूडेंट इन प्रोसेस ऑफ पीरियडिक रिफ्लेक्शन. पीरियडिक रिफ्लेक्शन का क्या मतलब हुआ? ये समझ में नहीं आया. उनको मतलब टाइम टू एवेल्युएट टाइम. करते रहेंगे टाइमली. हाँ, ओ, समझ क्लियर है गया अभी? सर. बट सर इसमें फीलिंग्स कहाँ से बीच में आ गई. एक्शन टुवर्ड्स सेल्फ एंड अदर्स, ये तो दिक्कत थी ना बच्चों की. बट थॉट्स. अच्छा, ओके ओके ठीक. Which of the following option will empower student the most? सेकंड. थर्ड. Maximize students learning achievement. Help students नहीं. नहीं relate मैंने learning to their real life. ये तो थर्ड है, सीधे सीधे थर्ड है. हाँ हाँ सर, थर्ड है थर्ड है. रियल लाइफ से लिंक करने से बेटर कुछ हो ही नहीं सकता. हम्म. लर्निंग उसमें क्या प्रैक्टिकलिटी के साथ मिक्स हो जाती है ना, तो हम्म. बेस्ट होता है. Divya grew up in business family in Hyderabad. As a system engineer, she traveled extensively on business deals and later settled in her in-laws' place in Warangal. Once during her visit to Thailand, she got to taste some rollover ice cream. Interestingly, a few weeks later, she came across an advertisement from a reputed Bangalore-based rollover and crafted ice cream company calling for expression of interest from potential franchise. Warangal did not have any quality ice cream parlor. The company wanted the potential franchisee to invest 20 lakh and 700 square feet space. Profits were to be shared in ratio 3 to 7 between the company and franchise. Divya was excited, but was wondering if 20 lakh was too much to invest. Further, she did not have the entire amount and was thinking of taking a loan.
She inquired with the ruler franchisee and found that franchise in Hyderabad had sales revenue varying 5 to 6 lakh rupees per month with a profit margin of 25 to 30%. Divya decided to go ahead. Warangal had three main areas: Kazipet, Jangaon, and Warangal. All areas were linked by good roads. Kazipet was business area where most high-end retail formats were located. It was also the education hub of the city. Jangaon, on the other hand, was a growing lower middle class business area, and Warangal was one of the mostly residential. Divya founded Kazipat, however, favored Kazipat, sorry. However, she soon encountered problems. Not only it was difficult to obtain space in Kazipat, but property rental does 30 to 40 rupees per square feet per month, as against Jangaon and Warangal, where it was 15 to 20 rupees per square feet per month. Divya's friend who lived in Jangaon told her that few branded outlets were opening in Jangaon, and it appeared to be the fastest growing area market in Warangal with the highest percentage of teenagers. But Divya was not in favor of Jangaon. She hoped to target college-going crowd of Kazipat. High real estate price in Kazipat and lower profitability estimate in Jangaon market confused Divya. सेम क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है. आपने देखा होगा एक म्यूजिक का आउटलेट खोलने वाला था एक बंदा, आई थिंक 2014-15 नहीं के हाँ पेपर में फिर होगा. से एज क्या इट इज चीज थी? क्वेश्चन रिपीट हुआ है. बस वहां पर म्यूजिक कैसेट्स का आउटलेट था, यहाँ पे उसको आइसक्रीम का कर दिया गया है. बाकी एज इट इज क्वेश्चन सर अपन ने वो वाला डिस्कस नहीं किया है क्या, वो मतलब अभी तक ये डिस्कस म्यूजिक नहीं हुआ वाला? है, वो अभी तक हाँ डिस्कस. अच्छा वो ओके, डिस्कस नहीं। तो तो या आप तो आप देखेंगे ये करा फिर अगेन, दीजिए जो या मैं फिर बात वो आपको करा समझाता दो. रहता हूँ कि रिपीटिशन ऑफ क्वेश्चन जेड में होता है. इसके एज इट नेक्स्ट इज वाला साइड क्वेश्चन है, रिपीटेड है. आपको अभी पता चल जाएगा जब अपन वो वाला मॉक डिस्कस करेंगे. Which हम्म of the following option, if true, would most likely interest Divya to start a franchise? तो ये सही था. हाँ ये तो सही था। Which of the following is least likely to demotivate Divya? ऐसा कौन सा पॉइंट है जो जिससे उसको ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ेगा? लास्ट वाला लास्ट ये वाला। हाँ सर, मतलब ये थर्ड वाला क्यों नहीं? ठीक है. अरे रेंटल ज्यादा बढ़ जाएगा तो वो ढंग से चला ही नहीं पाएगी ना काम, डिमोटिवेट हो जाएगी ना, उसको पैसे ज्यादा देने पड़ेंगे प्रॉपर्टी के. ठीक है वरुण, जी। देखा हमारे बच्चे कितने इंटेलिजेंट है. अरे सर हम थैंक तक यू, आने ही नहीं देते क्वेश्चन. आप हो वेरी ना गुड. साथ में. अच्छा. What could be the most likely reason for Divya opting for Kazipat? थर्ड, ये गलत हो गया सर. हाँ सर ये कंफ्यूजिंग था। हाँ मतलब थर्ड क्यों नहीं, मतलब मेरे को ये लगा. इसमें सर सारे ऑप्शंस डिस्कस कर लो एक बार। ठीक है, थर्ड क्यों नहीं? अच्छा थर्ड और जो फिफ्थ है इसमें दोनों में ज्यादा कोई चेंज नहीं है, बस एक चीज लिखी हुई है लेटेस्ट आइसक्रीम्स में इंटरेस्टेड है बच्चे. बट देखा जाए टेक्निकली तो थर्ड सही होएगा ना, कि बच्चे काफी ज्यादा चाहते हैं आइसक्रीम खाना. क्राउड पूरा बदल गया ना। नहीं, कॉलेज गोइंग क्राउड और टीनेजर्स इज वन इन द सेम. अच्छा वो बदल गया, काइंड ऑफ. सो आप ही तो जो अपन को बताना है कि काजीपत को ही उसने क्यों सेलेक्ट किया था, तो इसके लिए एक बार अपन दोबारा देखें. दिव्या फेवर्ड काजीपत. However, ये रहा, ये मतलब लास्ट ऊपर, इससे डायरेक्टली जस्ट ऊपर गिवन वाला था। पैराग्राफ. काजीपत was a business area where most high-end retail formats were located. ऐसा लिखा हुआ है ना. it was also the education hub of the city. हम्म, तो ये चीज एजुकेशन हब डायरेक्टली आपको जो टीनेजर्स और कॉलेज गोइंग कंफ्यूजन के. है ना, वो खत्म कर रहा है. टीनेजर्स भी तो इंक्लूड होंगे. सर उसमें सेकंड लास्ट लाइन में उसने ना कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए लिखा हुआ है। हाँ अच्छा, she hoped to target college going crowd of Kazipet. हाँ, हम्म तो इसका आंसर तो पैराग्राफ में छुपा हुआ था. ठीक है,
हम्म यस सर। Which is the most important decision criterion for Divya to consider in a business situation? लास्ट वाला। नहीं, बताता हूँ क्यों नहीं। कभी भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, तो आप लॉन्ग टर्म चीजों को देखते हो, आप शॉर्ट टर्म चीजों को नहीं देखते। तो लोन आपको तो लोन लेना अच्छा। है तो वो तो एक शॉर्ट टर्म का है कि चलो ये एक बार लोन आ लेके गया बिजनेस तो स्टार्ट करना है। आप हमेशा फ्यूचर की सोचते हो। इनफैक्ट बहुत से बिजनेस ऐसे होते हैं जो स्टार्टिंग में लॉस में चलते हैं 2-3 साल आगे तक, हो जाते हैं। समझ गए? तो हमेशा फ्यूचर हम्म को, इसको अपन को प्रायोरिटी पे रखना है। ठीक है। आ गया। हाँ, फर्स्ट क्यों नहीं? अट्रैक्टिंग कस्टमर थ्रू बिग डिस्काउंट। तो ये अरे तो यार, कुछ है बिग ही नहीं। डिस्काउंट का मतलब प्रॉफिट मार्जिन खत्म कर रहे हो ना। नहीं और सर, ये मैं केवल स्टार्टिंग इनिशियल में कर फेज रहा का है। हूँ, प्रॉफिट मार्जिन और तो फिर बाद ये में केवल करूंगा। इम्पोर्टेंट इनिशियल डिसीजन फेज का थोड़ी ना है। है, आपको लॉन्ग टर्म का सोचना होता है। और सर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन थोड़ी ना है अभी फिलहाल, एक बार बिग स्टार्टिंग डिस्काउंट के नहीं लिए वाली आप चीज। बुला सकते हो, हम्म पर सर ये बट मैं कर तो ये लॉन्ग टर्म के लिए रहा हूँ ना, कि बाद में मेरे को फायदा देगा, मैं बढ़ा लूंगा बाद में। अरे तो बाद में उससे कैसे भी फायदा देगा? इम्पोर्टेंट है ना। एक बात बताओ, तुम वहां पर चाय पीने गए थे जब वो फ्री में पिला रहा था? अगली बार गए? इधर नहीं। समझ गए बात को? समझ गया। हाँ। अरे सर चाय कब पी अपन ने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यू टू अरे इंक्रीज कंपटीशन, इलेक्ट्रो ऑटोमोबाइल्स द इंडियन सर सब्सिडियरी ऑफ रिपीटेड है, रॉबर्ट, रिपीटेड है। सेम ये है तो सर। रिपीटेड है। रिपीटेड है। हाँ, ये और पहले यही आया वो था। एग्जाम था जब मैंने आपको बोला था कि बहुत से क्वेश्चन रिपीटेड आ गए थे, और हाँ इसमें इनफैक्ट आपने चार फिर सेट देखा कि सेम 4 सेट रिपीटेड। तो ये 2019 में हुआ था। तो ये फायदा होता है पीवाईक्यूज करने का। एक तो वैरायटी बहुत अच्छी खासी कवर हो जाती है, और मेरे को नहीं लगता इतना रिपीट होना चाहिए। इन्होंने रिपीट कर दिया, बस नाम चेंज करके एज इट इज क्वेश्चन डाल दिए, सर, जो नाम कि भी जेड चेंज से नहीं जनरली किए दो एक्सपेक्टेड शर्ट में नहीं तो। रहता है। बट एनीवेज, सो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ Z 2019 DM section. Thank you.